Assalamualaikum class 6. Today we are going to start chapter number 13, electric current and circuits. And in this chapter you will learn about electricity, components of electric circuit of torch, and what are conductors and insulators. So let's start our chapter. Electricity. Electric current or electricity is the flow or movement of electric charges. So students, we know that everything in the world is made up of small tiny particles called atoms. And as you can see in figure, atom consists of three particles. Electron charge is negative, proton is positive charge, and neutron is neutral having no charge. So students, movement of these charges produce electric current, and this is what electricity is. Flow of charges is electricity. स्टूडेंट्स, बिजली पावर स्टेशन में बनती है जो हमारे घरों तक किसके थ्रू आती है? थ्रू केबल्स एंड इलेक्ट्रिक पोल्स, खंभों के जरिए आती है, डिलीवर होती है हमारे घरों तक. सो स्टूडेंट्स, बिजली जो पावर स्टेशन से बनकर हमारे घरों तक डिलीवर होती है उसे एसी पावर सप्लाई या एसी वोल्टेज कहते हैं. और हमारे घर के मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, टीवी, फ्रिज, एसी, दे ऑल वर्क बिकॉज ऑफ एसी पावर सप्लाई. स्टूडेंट्स, देयर इज़ आल्सो एन अदर सोर्स ऑफ पावर सप्लाई जैसा कि रिमोट कंट्रोल टॉयज, टॉर्चेज, रिमोट, इनमें बैटरी यूज़ होती है. सो बैटरी हमें डीसी पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल की. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक सेल इज़ यूज्ड इन क्लॉक्स, कैमराज, रिमोट, आल्सो इन कैलकुलेटर etc. So it is used in many devices. So it is a small source of electricity. Chemicals inside the cell react to give electrical energy. As you can see in the figure, electric cell has two terminals. One is positive terminal which has plus sign, and the other one is negative terminal with negative sign. So now let's see what is battery. Battery, combination of cells or two or more cells combine to make a battery. दो या दो से ज़्यादा सेल्स को अगर हम कंबाइन करें तो वो बैटरी बनती है. जैसा कि बैटरीज हम बार बार चेंज करते हैं क्योंकि बैटरी के अंदर का केमिकल इस्तेमाल हो चुका होता है. सो बैटरीज आर ऑफ टू टाइप्स. सेकेंडरी बैटरीज, रिचार्जेबल बैटरीज जिनको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, एंड प्राइमरी बैटरीज नॉट चार्जेबल. जब एक दफ़ा हम इनको यूज़ कर लेते हैं तो दोबारा हमें उनकी जगह नई बैटरी लाना पड़ती है. सो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ बैटरीज. लार्ज बैटरीज आर यूज्ड इन कार्स, कंप्यूटर्स, इन्वर्टर्स, राइट. सो इन शॉर्ट, बैटरी क्या करती है? इज़ अ डिवाइस विच स्टोर केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. As you can see, different types of batteries in the picture. So common types of batteries are lithium coin battery. lithium coin battery आप देख सकते हैं, it is used in watches, toys, calculators, and the solar battery. solar battery क्या काम करती है? It converts light energy to electricity. Electric bulb. Bulb is a source of light called electric bulb. So look at the bulb in the figure. Inside the glass there are two thick supporting wires and one very thin spring-like structure wire made up of element tungsten called filament is attached to these two wires. So these two wires are basically connected to the terminal holder, right? So students, when circuit is complete, filament will heat and produce light. Bulb glow because of the filament, and if it gets fused, bulb will not glow. Electric circuit. Electric circuit is combination of a battery, connecting wires, and device like bulb. Electric current flow in a closed path from positive to negative terminal. स्टूडेंट्स, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को ऑपरेट करने के लिए सर्किट ज़रूरी होता है. सर्किट्स कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं एज अ सेंस कि उनमें कंपोनेंट्स ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब की. सो द कंपोनेंट वी नीड इन दैट सर्किट इज़ ओनली बल्ब, स्विच, कनेक्टिंग वायर्स एंड सेल, बैटरी टू ऑपरेट. एंड जब हम इन सब कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं तो इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट का. जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इफ़ द सर्किट इज़ कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट है तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और बल्ब ग्लो करेगा. इन द अदर हैंड, इफ़ वायर इज़ ब्रोकन और सर्किट क्या होगा आपका? इनकम्प्लीट और करंट फ्लो नहीं करेगा. Students, electric circuit is all about the components required for a device to operate. And if the path is complete, the device will work, and if the path is broken or not complete, the device will not work. Electric switch. In our houses we have a switch to on or off electrical appliances like a bulb. If switch is off, it stops flow of current, and when switch is on, device starts working. स्टूडेंट्स, जब आप लाइट ऑन करते हैं अपने रूम की तो बेसिकली आप स्विच ऑन करते हैं. स्विच ऑन करने से क्या होता है? सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, करंट वहाँ से फ्लो करता है और बल्ब ग्लो करता है. बट व्हेन आप जब स्विच ऑफ करते हैं तो पाथ जो है वो
ब्रेक हो जाता है, करंट जहाँ से फ्लो करता है, तो आपकी अप्लाइंसेस क्या है, वो बल्ब आपका ऑफ हो जाता है। स्विचेस इसीलिए यूज़ होते हैं ताकि बैटरी इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली ना यूज़ हो, उसको सेव किया जा सके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस मार्केट में अवेलेबल हैं। ऑन एंड ऑफ बटन आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, पुश और स्लाइड बटन आप टॉर्च में, खिलौनों में इस्तेमाल करते हैं, प्रेस बटन यूज़ होता है इलेक्ट्रिक डोरबेल में। स्टूडेंट्स, ये सब स्विचेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो स्विच क्या है, सिंपल डिवाइस है दैट ब्रेक्स द सर्किट एंड कंप्लीट्स द सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ अ चार्ज। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और करंट। हमें सेल या बैटरी चाहिए ताकि करंट सर्किट में फ्लो हो सके। देन वी नीड कनेक्टिंग वायर्स टू कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट्स, ऑल्सो इलेक्ट्रिक डिवाइस लाइक बल्ब विच ग्लो एंड गिव्स लाइट, एंड देन main circuit is about torch, so bulb is necessary. Then switch is also required, हम use करेंगे to on or off the torch. As you can see students in the picture, this is a simple circuit of the torch. What is here, बल्ब है एक, देन कनेक्टिंग वायर्स एंड स्विच। और यहाँ पे हमने दो बैटरीज यूज़ की हैं, दो सेल्स यूज़ किए हैं, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट है ताकि करंट फ्लो कर सके और टॉर्च ग्लो करे। अगर हम दोनों टर्मिनल्स एक ही होंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे तो करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा और आपकी टॉर्च ऑन नहीं होगी। Conductors and insulators. In electric circuits, we used electric wires made of aluminium, terminals of bulb and batteries made of iron, filament of bulb made of tungsten, plastic or rubber coating over connecting wires which do not allow current to pass out of wires. So students, in electric circuit components we use different kind of materials, and all those material or element which allow current to pass through them are called conductors, like copper, gold, aluminium वगैरह वगैरह. And on the other hand, all those material which do not allow current to pass through them are insulators like wood, plastic, rubber, etc. स्टूडेंट्स, इंसुलेटर हमें इलेक्ट्रिक शॉक से भी बचाते हैं। ये जो कनेक्टिंग वायर हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ करते हैं, इसके अंदर का मटेरियल कॉपर से बना होता है विच इज़ कंडक्टर, और ऊपर जिसके प्लास्टिक वायर कोटिंग है वो इंसुलेटर है, जिससे हमें करंट नहीं लगता। करंट अंदर से फ्लो करता है लेकिन बाहर जो मटेरियल है प्लास्टिक मटेरियल, उसकी वजह से हमें करंट नहीं लगता। कंडक्टर्स हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने में, जबकि इंसुलेटर हम यूज़ करते हैं एज अ प्रोटेक्टिंग शील्ड टू प्रिवेंट अवर सेल्फ फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक शॉक. So this is the end of your chapter students, in which we learn about electric circuit and its component. Thank you for watching. Allah Hafiz.